वर्ड कंप्राइजेस ऑफ जैसे 5 एलिमेंट्स जो हमारे हैं जिसको हम मानते हैं, क्या क्या हैं? अर्थ, वाटर, एयर, वैक्यूम, फायर, space and fire. Other than these 5 basic elements, word comprises of 4 things. What are those 4 things? There are 4 forces in the universe. One is the gravitational force, and then the nuclear force. You have weak interaction and atomic energy. So these 4 forces are the one which is responsible for the entire running of the universe. That's what I believe. Okay, running of the universe, you are right, absolutely. These are the 4 forces. So the word comprises of basic 5 elements, as we said: fire, water, air, space and air. Like that, there are 4 other things. All these things put together constitute the word. One is minerals, the other second is vegetable and plants, third is animal, and fourth is the human beings. Minerals, there is no life, yet it goes under changes. जैसे आपने कहा कि chemical reaction हुआ millions of years. Similarly, minerals and जो metals and जो चीज़ दबी पड़ी हैं, there is no life in them, but over a period of time, there is a heat generated, there are other things generated, there can be energy, but it takes long time, but it goes under change. Minerals. Then vegetables, very little awareness and somewhat expression. सूरज उगेगा, फूल उस तरफ खिलेगा, उसकी तरफ देखेगा, पानी की ज़रूरत होगी तो जड़ें जिधर पानी है उधर चली जाएंगी, but it is confined to one place. Animals, there is more awareness, but predetermined, pre-programmed. Lion है तो वो नॉन वेज ही खाएगा, वो वेजिटेरियन नहीं खा सकता. गाय है तो वो वेजिटेरियन ही खाएगी, घास फूस ही खाएगी और कुछ नहीं खाएगी. They will behave in a particular manner the way they have come and they have arrived in this society, in this world. That's why I say their computer is pre-programmed. They cannot change the course of their life. But the fourth division of human being is the only division which can change its course of life, which can think about it and decide to act against their wishes, against their desire. They can change their desires, they can change their course of life, they can do everything. And I feel pity on some of us humans, those who behave like animals. When they fight on something, religion or something or the other, then we say क्या जानवर जैसा व्यवहार करता है. कहते हैं कि नहीं? ये एक वेदों में लिखा और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से समझा, देखा. तो human beings can also be categorized into these 4 beings. क्या थे 4? Minerals, vegetable, animals and human. तो हमने कहा कि there are people in this world जो कि मिनरल पर्सन हैं, उनकी तुलना मिनरल के साथ की जा सकती है. एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखें अगर आपको इस सर्कल में दिखे कुछ, अगर आपके समझ में आएगा तो. ये सर्कल है लाइफ का. वन सेल्फ, इनर मोस्ट सर्कल. वन सेल्फ मीन्स मेरे को, मुझे अपना खुद का देखने को चाहिए, खुद की अच्छाई चाहिए, खुद का कंफर्ट चाहिए. ऐसे सेल्फिश आदमी को हमने कहा मिनरल ह्यूमन बीइंग और मिनरल पर्सन. उसके बाद आप आइए, दिस इज द वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग, जो अपना और अपनी फैमिली का देखता, उससे आगे नहीं देखता. उसको वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग हम कह रहे हैं. और उससे आगे बढ़े, थर्ड इज जो कम्युनिटी की सोचता है. मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार तो है ही है, मेरा समाज, मेरा देश, वो कम्युनिटी की सोचता है. उसको हमने एनिमल ह्यूमन बीइंग कहा. अभी भी वो
क्योंकि फिर भी सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरा देश है ना, मेरी कम्युनिटी है, मेरा समाज है, मेरा परिवार है, मैं हूं, फिर भी सेल्फिशनेस है कहीं ना कहीं। उसको हमने एनिमल ह्यूमन बीइंग कहा। यहां इस सर्कल तक हम आ गए। उसके बाद ह्यूमन बीइंग, जो पूरी ह्यूमैनिटी की सोचता, अपनी नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपने देश की नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी की सोचता, जिसके अंदर हमने एक अडॉप्ट किया पिछले वर्ष, क्योंकि 170 देशों में है और आज करीब करीब 1 बिलियन व्यूअर हमारे पास हैं, तो हमने अडॉप्ट किया कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। फिर भी हम ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन जो आदमी ऑल बीइंग्स की सोचता है, जो ट्रुथ को पा लेता है, सच्चाई को पा लेता है, उसको हमने गॉड ह्यूमन बीइंग कहा। ये जो आप भगवान की बात कर रहे हैं, उसने पांचों तत्वों को भी अपने आप के कंट्रोल में कर लिया। जिसको भगवान कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, कुछ भी कहें आप। सो दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। तो हमने वर्ल्ड की कंपोजिशन समझी, अभी हमने ह्यूमन बीइंग्स की समझी। Sir, in addition to what you just showed us, I'd like to add one point. So, there's this concept in economics of invisible hand. So, essentially, human beings work towards their own survival, their own benefit, and when collectively, when we view that, in a sense, basically, you end up doing good for the society and for the greater humanity. So, essentially overall everyone is working towards their own survival and everyone else's survival in general also. वो उसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूँगा, जो इनविजिबल हैंड की बात इकोनॉमिस्ट जो करते हैं, मैं एक एक्ट कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं वैसे समझाता। यू मेक एक्शन ए, देन यू ऐड इनटू इट कि नहीं, इसके बाद मुझे ये स्टेप भी इसमें जोड़ना चाहिए, तो यू ऐड बी। 2 actions you have done. Then you take another action. You have to achieve some goal. See, you have to have success in your economy, or you want to make economy good. So आप कहेंगे अगर इस चीज़ को इसके साथ मिला के, ऐसा करके, उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा करेंगे, तो ये रिजल्ट जो आप चाहते हैं आ जाएगा। लेकिन वो जो इनविजिबल बात आप कर रहे हैं, A+B, यानी 2 एक्शन जब किए, उसका एक तो रिजल्ट आया जो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन एक इनविजिबल एक्शन भी साथ साथ चल रहा है, जो आप देख नहीं पा रहे हैं। जो आप देख नहीं पा रहे हैं उसको आप इनविजिबल कह रहे हैं। तो वो चीज़ साथ साथ चल रही है, क्योंकि हमारा माइंड अब तो यहाँ तक देख रहा है, इसलिए हमको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, इसलिए इनविजिबल कह दिया। आपने 4 एक्शन किए, उसका रिजल्ट ये आया, लेकिन आपका दिमाग कहता नहीं यार, इन 4 से ये नहीं आया, एक 5वीं चीज़ और जुड़ी होगी इसमें इनविजिबल, जो कि मुझे नहीं पता लगा। सच ये है कि उस A+B का जो रिएक्शन हुआ वो हमें नहीं समझ में आया, इसलिए हम उसको इनविजिबल कह रहे हैं, पर है तो उस एक्शन की वजह से ही वो चीज़ बन रही है।